हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है जो हमारा। ड्यू टू रीजन ऑफ कोरोना सम टॉपिक्स आर रिमूव्ड, तो वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन से टॉपिक जो है यहाँ से आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग or non-terminating recurring decimals on the number line through successive magnification is removed. The second one is you're explaining that every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely the opposite of that, every point on the number line represents a unique real number is also removed. And next, the definition of nth root of a real number is also removed from the syllabus. And now we will discuss about a topic to be covered in this unit, in this first part of number system. The first thing is natural numbers, the second is whole number, integers, rational numbers, representation of numbers on number line, and finally we give you some problems to solve. Then the first thing is, what about the natural number? What is natural number? Simply we can say counting numbers are known as the natural number, of course. And then the counting numbers, 1 2 3 4 5 6 7 etc. are the all natural numbers. And as in natural number, the letter n, starting letter is n, that's why we denote natural number as by capital N. Next, the whole number. Whole number is what? All natural numbers are whole number but together with 0. Then we define in such a way, all natural numbers together with 0 forms the collection of all whole numbers. For example, here the 0, including 0 in natural number, including 0 in natural number like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are all whole numbers. Whole numbers are denoted by W because W whole, and the W is the starting letter. In next point, we will discuss every natural number is a whole number. From definition, we can say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, every natural number are whole number. But 0 is a whole number which is not a natural number. These are some important points regarding the numbers. The next we will watch about integers. Integer, what is integer? Then the definition is this: all natural numbers, 0 and all negative of natural numbers forms the collection of all integer. Natural number, we seen that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 extra etc. are all the integers. But not only the positive values are integers, also the negative values, just like 1, -2, negative of all numbers are also an integer. This is known as negative integers. Thus in natural numbers, the 1, 2, 3, 4, 5, 6 are all natural numbers, and the negative values, just like -1, -2, -3, -4, all are also negative natural numbers. And when we add 0 with these negative and positive natural numbers, we form the collection of integers. For example, this -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 all forms the collection of integer. Next, we will see that the integer is denoted by
1 second. 1 minute, just a second. Some problems are generated. We see that integers are denoted by capital Z. Then we can say that why it is denoted by Z. The starting letter is I integers, so that we can denote it by I. But here we denote the integers by capital Z. This is some reasons behind it is Z comes from the German word zählen, which means to count. इसी के कारण से आपका इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ना कि I से. देन यहाँ हियर सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. तो आपका जो भी नेचुरल नंबर है दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, वो सारे क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं. एंड एवरी होल नंबर, क्योंकि आपका इंटीजर्स में जो है निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो सारा कुछ इंक्लूडेड है. तो एवरी होल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर. नेक्स्ट हम लोग रैशनल नंबर देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. और इसके कंसेप्ट को आपको बेसिकली इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हमने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, किसी भी वैल्यूज को फ्रैक्शन में हमने डिनोट कर दिया, दैट इज अ रैशनल नंबर, तो वो एक रैशनल नंबर होगा. बट उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको सिंप्लीफाई करके उसको फाइनली रैशनल नंबर में लाना होगा. तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है, तो कोई भी आपका फॉर्म जो कि एक सेकेंड पेन प्रॉब्लम, यस, अगर आपका P बाई क्यू के फॉर्म में अगर ये है P बाई क्यू, दैट मीन्स कि ये क्या हो आपका डिवाइडेड फॉर्म में हो. अगर कुछ भी जस्ट लाइक 3/4, 1/2, 4/5, देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. तो आप ये देख के ये समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, जो P बाई क्यू है उसमें P जो है और जो Q है ये क्या होना चाहिए, ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए. अब इंटीजर्स है तो ऑफ कोर्स वो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक -1/2 ऑल्सो. कुछ भी हम लोग उसको ले सकते हैं, तो निगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू होने चाहिए. और द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट रैशनल नंबर इज Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q दैट मीन्स डिनोमिनेटर दिस, ये आपका क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए. इसलिए क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये जो P बाई क्यू फॉर्म है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है. इसलिए द इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन ये है आपका सेकंड की Q आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. द थर्ड पॉइंट आपका मेन ये है, अधिकतर स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, या फिर समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसको केयर नहीं करते हैं. आपको बहुत सारे बुक्स में भी इस पॉइंट को ज़्यादा डिस्क्राइब तरीके से भी नहीं किया रहता है, बताया भी नहीं रहता है. बच्चों को लगता है जस्ट हमने ये 2 पॉइंट ले लिया देन ये आपका डिफाइंड हो गया. बट अगर आप माइन्यूटली देखने जाएंगे तो को प्राइम होना रैशनल नंबर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आपका ये को प्राइम क्या है, को प्राइम को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स कि अगर 2 नंबर्स या 2 इंटीजर्स कोई भी P और Q, ये दोनों को प्राइम है. को प्राइम कब कहे जाएंगे, जब इनमें कोई भी फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1, एक को छोड़कर और कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा
3 है p का वैल्यू और q है हमारा 5 का वैल्यू। ठीक है, पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बट हम लोग यहाँ देखेंगे कि p/q फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये 3/5 का फॉर्म है। तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि p और q दोनों में ही 1 कॉमन फैक्टर है और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, रैशनल नंबर है। अब क्या होता है कि बच्चे, हमने बहुत सारी कॉपी में हमने देखा है और ये जज किया है हमने कि क्या है कि बच्चे, अब मान लीजिए 4/100 लिख दिया। अब इसको इन्होंने कह दिया कि यस, इसी फॉर्म में छोड़ दिया कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये गलत नहीं है, क्योंकि p आपका जो न्यूमरेटर है दैट इज 4 और जो डिनोमिनेटर है वो आपका 100 है, वो भी इंटीजर है, वो वैलिड है। फिर आपका सेकंड पॉइंट भी वैलिड है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। बट अगर आप इसे 2 भी नहीं 1/25 लिखोगे तब जाके ये क्या होगा, p बाई जो q है वो क्या होगा, आपका कोप्राइम्स होंगे, क्योंकि इन दोनों में अब 1 छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये पॉइंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आंसर जो है इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है रैशनल नंबर का, आपको इस फॉर्म में छोड़ना है। ये आप केयर करिएगा। अब इसका नेक्स्ट है, हमने ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैपिटल Q से कर रहे हैं, R से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यार रीजन ये है कि रैशनल जो है आपका रेशियो वर्ड से आता है और Q जो है कोसेंट वर्ड से आता है। तो कोसेंट दैट मीन्स इन द डिवाइडेड फॉर्म, दैट्स व्हाई वी डिनोट रैशनल नंबर्स एज कैपिटल Q। ये आपका सारे नंबर्स हमने मोस्टली डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इसी से लिए गए हैं। तो कुछ नहीं, सिंपली जस्ट ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कि जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होंगे? तो ये क्या है आपका, गलत है, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है कि हम लोग क्या है कि 1 मिनट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सारे इंटीजर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे? तो आप सोचिए कि आप एक बार में, तो अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इंटीजर्स कैसे, अब कोई किसी से पूछ लिया जाएगा कि ये इंटीजर है, अब ये क्या रैशनल नंबर है, तो वो सोचेगा अरे रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है। तो वो एक बार में हो जाएगा कि नहीं, नहीं होता है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। बट अगर हम इसमें थोड़ा केयर करें तो हम जो है 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो दिस इज योर p, दिस इज योर q, then this is in the form of p/q and the next condition p and q जो है आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो भी फुलफिल है। नेक्स्ट है कि कोप्राइम होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये कोप्राइम है। तो हमारा क्या है कि अगर हम ये मान ले तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, क्योंकि अगर हम मान लें कि कोई भी इंटीजर अगर m से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम लोग उसको m/1 लिख सकते हैं। हम m को m/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। इसलिए हम लोग सारे इंटीजर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। बट द रिवर्स क्वेश्चन हियर, द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो इंटीजर होंगे? तो नहीं, ये इस तरह के जो रैशनल नंबर होंगे ये आपके इंटीजर्स होंगे। बट जो मान लीजिए कि कुछ ये एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो ये क्या इंटीजर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है।
नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग को सारे जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो नंबर लाइन पे हमें डिनोट करना है, तो उसके लिए हमें ये सीखना है कि ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ एक कह रहे हैं कि आपको एक लाइन लेना है, से आप कुछ और भी नाम ले सकते हो, से एक्स वाई है आपका ये। अब क्या है कि इसमें एक मिडिल पॉइंट हम लेंगे, 1 मिनट, हम लोग एक मिडिल पॉइंट लेंगे। तो यहाँ ये क्या हो गया आपका, इसको हमने मान लिया 0, ठीक है, 0 है, ओरिजिन माना, और इसको हम लोग 0 लेते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। अब इसके राइट हैंड साइड में भी स्पेस है, तो हम लोग इसमें इक्वल जो है पार्ट्स करते हैं, इक्वल पार्ट्स। ये आप स्केल के थ्रू आप कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हो, इसमें कुछ ये नहीं है कि आप इतने लोगे और 1 यूनिट लोगे या 1.5 यूनिट लोगे या 2, बट जो यूनिट आप लोगे वो आपका इक्वल होना चाहिए और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, और वो उसको आपको सेट करना है ड्राइंग में। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली करोगे। और हम लोग जो है ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ये एरो शो करता है, ये एरो शो करता है इन्फिनाइटली वैल्यूज जो आपके नंबर लाइन पे होंगे। ये कोई भी आपका इंड नहीं हुआ है। सिमिलरली हियर ये इंड नहीं हुआ है, आप इसको बढ़ा सकते हो। और हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यूज को लेते हैं। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसी चीज को स्टेप वाइज में लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन से एक्स वाई विच एक्सटेंड इंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। इंडलेसली है क्योंकि ये एरो इसलिए यही शो करता है कि ये आप कितना भी बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एज इंडिकेटेड बाय द एरो हेड इन द डायग्राम एवव। यहाँ एवव होना चाहिए, यहाँ मैंने बिलो लग दिया, यहाँ एवव आप कर दीजिए क्योंकि हमने डायग्राम ऊपर में बनाया है। द सेकेंड पॉइंट, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन दिस लाइन। हम लोग कोई पॉइंट ओ लेते हैं अपने डायग्राम में, और इसको हम लोग इंटीजर वैल्यू 0 से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ 0 लिया है, ये 0 है आपका। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, नाउ टेकिंग ए फिक्स्ड लेंथ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड लेंथ लेते हैं। दिस इज योर फिक्स्ड लेंथ। दिस, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये इसको हम लोग यूनिट लेंथ कहते हैं। यूनिट लेंथ इन द सेंस ये नहीं है कि आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर लेकर आप ड्रॉ कर सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। बट ये जो होना चाहिए वो आपके इक्वल होने चाहिए बोथ डायरेक्शंस में और सारे पॉइंट्स के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूनिट लेंथ कहते हैं कि आप यूनिट लेंथ लेके उसको ड्रॉ करो। सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस टू द राइट एज वेल एज लेफ्ट ऑफ ओ। अब आप क्या करो कि इक्वल डिस्टेंसेस सेट करो लेफ्ट में भी और राइट में भी। नाउ द फोर्थ इज, ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन या लाइन। तो ये आपका क्या है कि जितने भी इंटीजर है और हर एक इंटीजर जो है किसी न किसी पॉइंट में हमारे नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि नंबर लाइन पे हमें वैल्यूज शो करने के लिए मैग्नीफाई करके शो करना है कि दिस वैल्यू, ये आपका वैल्यू जो है कैसे आपको यहाँ पे शो होगा, नंबर लाइन पे कैसे शो होगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा। द लास्ट थिंग इज, हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो इसको आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। सॉरी 1 मिनट, आप क्या करो, इसको सॉल्व करके आना। हम लोग जो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हम लोग यहीं से करेंगे। तो थैंक यू।